जा रहा हूँ मैं।
So, good afternoon to all of you, and welcome you all in our in-house training program. So, it is being continuing since last 2 or 3 days, and tomorrow also there will be in-house training program, and that time to time you will be getting that link and all this thing. And today, one thing I would like to tell you that you have to at least listen the meeting till 40 to 50 minutes. Otherwise, and before going to end, before 10 minutes only, you will be getting the attendance link. And in the course of the meeting, sometimes if you are disconnected with that link, so you can once again connect yourself. Clear? No? Means be in the meeting. Soon after joining, you should not escape or you should not leave that meeting. Clear? So you all will be quite glad to know that today our host is our young dynamic personality, and who is having a lot of grief in his subject, our IT professional, professional Mr. Manish Kumar, with his topic cyber crime and its ethics. Cybercrime and its ethics. And so let us, and once again, I am telling you that attendance link will be sent to you before only 10 minutes before the end of the meeting. And then you need to fill up that attendance link and submit it. Otherwise, your attendance will not be marked. And you need to listen the meeting at least 40 minutes, at least you should listen the meeting. So let us welcome our Manish sir. Clear, no? Manish sir, you please come and continue your program. Please. Good morning, everyone. Are you getting me? Hello. Yeah. Good morning, everyone. Today we are here for IT session, and we will know something about the IT and cybercrime and how we will maintain our children, our students. Our children, our students, how to protect from cybercrime and ethics. Okay, so let's start. Hello, sir. So we will know something about how to be safe in cyber world. सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, हम किस प्रकार साइबर वर्ल्ड में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, किस प्रकार हम अपने डाटा को सेफ एंड सुरक्षित रखेंगे, और किस प्रकार हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को या खुद भी हम साइबर बुलिंग से बचेंगे. सो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कुछ एक 2-3 मिनट का एक वीडियो है, हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे. लेट्स सी दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम. Is it visible? There is a video running on the screen. Is this visible? A small video is running on the screen. Is it visible?
No. Okay. Just hold a second. Now is it visible? I think now it is visible. So let's start to know cyber world. Okay, so firstly we will know something about cyber world कि किस प्रकार साइबर हम लोगों को हार्म पहुंचाती है या हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट्स को. तो इस सेशन के माध्यम से एट द एंड हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे कि हाउ वी protect from cyberbullying, from cyber criminals, and on how to maintain our mobile and computer and devices. So firstly, we will know something about technical aspects and how this will help our devices to protect from these all things. Okay, so let's start. So firstly, some cyber words
Okay, so we know that this is the words I always listen from anywhere, and like cyber ethics, cyber crime, cyber attack, cyber bullying, or cyber security. Let's know something about this all. Firstly, a cyber. What is cyber? Cyber क्या है? Cyber is a prefix that denotes a relationship with information technology, anything relating to computing, such as the internet falls under the cyber categories. Next term, cyber ethics, the science of communication and automatic control system in both machines and living things. यानी कि किसी मशीन के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा जब हम किसी इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, वो हमारा साइबर एथिक्स कहलाता है. नेक्स्ट है साइबर क्राइम. साइबर क्राइम इज द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर and a network. That computer may have been used in the commission of a crime, or it may be the target. Cyber crime may harm someone's securities and financial health, and also social effects. मीन्स कि साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ रही है जिससे कि हमारा जो हमारे बच्चे होते हैं या खुद हम सब भी होते हैं, किस प्रकार साइबर क्राइम के अंदर हम आते हैं. हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो पीपल होते हैं, उनके डाटा इधर उधर क्रैश करते हैं. कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो उसके माध्यम से या उसके फोन से किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या हमारे डिवाइस के माध्यम से हो, वो हमारे डाटा को हैक करते हैं, डाटा को चुरा लेते हैं और वो किसी सोशल मीडिया पर वो उससे वायरल करते हैं या फिर उसके माध्यम से ब्लैकमेलिंग करते हैं, धमकी देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. यह एक प्रकार का ऐसा बड़ा क्राइम है जो लोग घर में बैठे करते हैं और दूसरे लोग जान भी नहीं पाते हैं कि कौन किसके चेहरे के पीछे किस तरह की चीजें हो रहे हैं. और आज के दिनों में मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. साइबर बुलिंग से हरासमेंट होते हैं और लोग इस डर से किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि उसकी प्राइवेसी उसके अंदर होते हैं. तो ये सब चीज तभी संभव हो पाता है किसी के द्वारा उस चीजों को बुलिंग करना, क्योंकि हमारे पास उस सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है. we will know this about all these things, definitely we will protect from these all things. So next है cyber attack, the unauthorized access of private and next है cyber attack, the unauthorized access of private or confidential information contained on a computer system or network. जब किसी unauthorized person जो हमारे authorized से बाहर है, जिसको मैंने परमिशन नहीं दिया है किसी तरह का हमारे कंप्यूटर या हमारे डिवाइसेस या हमारे डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, वो व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से अगर हमारा डाटा को क्रैश की जाती है, डाटा को लिया जाता है, वो डाटा को इधर उधर करते हैं, उस परिस्थिति में हम उन चीजों को साइबर अटैक बोलते हैं. इसका मतलब कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हुई है. अगर किसी भी माध्यम से डाटा हमारा मेरे परमिशन के द्वारा, मतलब बिना मेरे परमिशन के इधर उधर क्रैश करती है, जाती है ना, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अटैक. नेक्स्ट है साइबर बुलिंग. Next है cyber bullying, any form of online harassment. किसी भी प्रकार का ऑनलाइन हरासमेंट होता है, किसी भी मतलब डिवाइसेस से हो या इंटरनेट के माध्यम से. अगर किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी अगर ऑनलाइन हरासमेंट किया जाता है, वो हमारा साइबर बुलिंग कहलाता है ना. साइबर बुलिंग जैसे कि अगर हमारा डाटा को इधर उधर कर देता है या हमें कोई ब्लैकमेलिंग करता है, और जिसमें इंटरनेट की मदद ली जाती है, जिसमें कंप्यूटर की मदद ली जाती है, जिसमें मोबाइल की मदद ली जाती है, जैसा हमारा साइबर बुलिंग कहलाता है. नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी. अब इतने सारे जब प्रॉब्लम्स है तो क्यों ना हम लोग साइबर को सिक्योरिटी दें, क्योंकि साइबर मतलब कि जिस प्रकार इंटरनेट को इन्वॉल्व करके हम अपने कंप्यूटर अपने डिवाइसेस को जोड़ते हैं, आदान प्रदान डाटा का आदान प्रदान करते हैं, ये सब साइबर है. और साइबर को सिक्योर करना हमारी प्राइमरी चीज बन गई है. तो इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले कि साइबर को सिक्योर कैसे करते हैं. द टेक्नोलॉजीज एंड द प्रोसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर्स. किस मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. जब वैसे व्यक्ति जिसको हमने परमिशन नहीं दिया है कि हमारे डाटा को एक्सेस करने के लिए, वह व्यक्ति के द्वारा जब हमारे डाटा को एक्सेस की जाती है या मेरे परमिशन के बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, उन चीजों को जब हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, इन चीजों को बोलते हैं डाटा सिक्योरिटी.
नेक्स्ट है, अब हम जानेंगे किस प्रकार कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो हमें कंप्यूटर में कुछ टेक्नोलॉजी हमें अवेयर कराएंगे और किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी रूप से हम उसको बचाएंगे और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन कुछ पहलुओं पर हम देखते हैं, उन कुछ एस्पेक्ट्स पर देखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स। सबसे पहला है यूज सेफ सर्च ऑप्शन व्हाइल सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम सर्च कर रहे हैं क्या वो लीगल है या इलीगल है। हम हमेशा इसे सोचना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया है कि लोगों को जब कोई भी चीज सर्च करना होता है लोग किसी से पूछते नहीं, सीधा गूगल पर जाते हैं सर्च करते हैं। बट हम वहां पर अलर्ट करना चाहेंगे कि कोई भी चीज सर्च करने से पहले हमें सबसे पहले हम ये जाने कि जो भी चीज हम सर्च करते हैं वो लीगली है या नहीं। अब सपोज दैट कोई ISI या फिर कोई इस तरह की चीजें हम सर्च करते हैं, है ना, या फिर किसी दूसरे कंट्री या कुछ आतंकवादी संगठन का कोई टीम हम सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें सर्च करना भी इलीगल है। तो हमें इन सभी चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज कि जब भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसे कभी भी हम शेयर ना करें, है ना, बिफोर सेंडिंग और फॉरवर्डिंग। अगर इस तरह की चीजें हम किसी को सेंड करते हैं या फॉरवर्ड करते हैं उससे पहले हमें यह सोच लेना होगा कि वो चीज सही है या नहीं है। अगर आपको जब लगे कि ये सब चीज सही नहीं है, हमें किसी को नहीं भेजना चाहिए। जो चीज आप जिस चीजों से हरास हो रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से कोई भी उन चीजों को कभी भी किसी दूसरे के पास उसे फॉरवर्ड या शेयर ना करें। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, चेक इफ द वेबसाइट्स यू आर बीइंग विद HTTPS। अब देखिए जितनी भी इंटरनेट का जो साइबर है, जितनी भी हमारा अभी सारे, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का हर एक चीज जितनी भी सेक्टर्स है सब कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। उस परिस्थिति में एक HTTP है जो सारे इंटरनेट के सारे सिस्टम को बनाए रखता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट को चलने में मदद करती है। अब यहाँ पर क्या है कि HTTP के साथ एक वर्ड आता है, एक लेटर है S। अब आप देखिएगा कभी कभी URL के ऊपर में HTTP के साथ एक वर्ड है S जो हमें बताता है सिक्योर्ड, यानी कि वह जो पोर्टल है, जिस पोर्टल को हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा सिक्योर होता है। और इसको चेक करने के लिए हम अपने URL बॉक्स पर जाएंगे और वहां से हम चेक करेंगे कि HTTP के लास्ट में एक S वर्ड जरूर होगा। कभी कभी हम देखते होंगे कि HTTPS है और कभी कभी हम देखते होंगे HTTP सिर्फ ओनली HTTP ही होता है। तो अगर जिस HTTP के लास्ट में अगर S के साथ होगा HTTPS, है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो जो हमारा पोर्टल है, वो जो हमारा वेबसाइट से कहीं ना कहीं वो सिक्योर है। और उस वेबसाइट को अगर आप यूज करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका डाटा क्रैश होने की चांसेस बहुत हद तक कम जाती है। खत्म नहीं हो जाती है बट कुछ हद तक कम जाती है। ऑल्सो लुक फॉर अ ग्रीन एड्रेस बार, और इस तरह से देखिएगा वहां पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का आइकन भी बनती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी तरह का इंटरनेट यूज करें किसी भी पोर्टल को, तो आप जरूर एक बार चेक कर ले अपने URL बॉक्स में जाकर कि वो वेबसाइट के लास्ट में ऐसे है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका डाटा क्रैश हो सकती है, डाटा इधर उधर जा सकती है। फर्क नहीं पड़ता है कि जब कोई डाटा हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है तब फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज दैट हम इंटरनेट पर गए, कोई अगर हम जोक्स पढ़ रहे हैं या कोई वर्ड का हम मीनिंग जान रहे हैं, या हमारे फोन में ऐसा कुछ है ही नहीं, या कोई हमारी गैलरी में कुछ है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के भी द्वारा अगर हम हैक होते हैं या कोई हमारा डाटा चुरा लेता है, जान के क्या करेगा, आओ देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जब हमारा कुछ प्राइवेट चीजें होते हैं, वैसी चीज जब पब्लिक मीडिया में आती है तब हम ज्यादा हरास हो जाते हैं, तब हम साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, साइबर अटैक का शिकार होते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें इन सारी चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। अब हम मान लेते हैं कि अलग अलग बैंक में अलग अलग जो हमारा आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोन पे होता है, गूगल पे होता है, जितनी भी चीजें इस तरह का पेमेंट मेथड है, हम हर जगह एक अमूमन हम लोग मतलब एक माइंड में सेट रखते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया या एक प्रेजेंट ईयर हो गया। जैसा कि लोग कॉमन करते हैं कि अगर किसी संस्था में ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइनिंग जो डेट होता है या फिर ज्वाइनिंग जो ईयर होता है वो ज्यादातर उस संस्था से रिगार्डिंग जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, पोर्टल होते हैं, साइट्स होते हैं, वो सब पर उस डेट को रखते हैं। तो लोग जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि ज्यादातर लोग अपने डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, पासवर्ड के तौर पर वो डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, या अपना मैरिज का डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, मतलब मैरिज का जो डेट होता है वो रखते हैं, या ज्वाइनिंग डेट रखते हैं, या फिर मोबाइल नंबर रखते हैं, या स्टार्टिंग का फर्स्ट डिजिट क्या मतलब फर्स्ट 4 डिजिट 5 डिजिट या लास्ट का
फर्स्ट 4 और 5 डिजिट, तो इस तरह की चीजें करते हैं। तो जो अटैकर्स होते हैं वो इन सभी चीजों को समझते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पासवर्ड लगाए तो इन सभी चीजों को कभी ना यूज करें, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग अपने ईमेल का पासवर्ड, और याद रखिएगा ईमेल सबसे बड़ा रीजन है डाटा क्रैश करने का। ईमेल सबसे बड़ा चीज, अगर आपका ईमेल किसी ने हैक कर लिया ना, आपका पूरा फोन का सारा सिस्टम या अपने कंप्यूटर का सारा सिस्टम वो आपके ईमेल के माध्यम से हैक कर सकता है, क्योंकि आपका ईमेल हर एक जगह रिलेट करती है। हम अपने कहीं भी देना हो, बैंकिंग हो, चाहे पर्सनल काम के लिए हो, या किसी ऑफिशियल अनऑफिशियल, हर जगह हम अपने ईमेल को यूज करते हैं। इवन सरकारी फॉर्म वगैरह होता है, हम ईमेल को यूज करते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपका ईमेल हैक कर लिया, इट मीन्स कि your all the data will be hacked after when your email will be hacked। अगर आपका ईमेल किसी के द्वारा ऑथराइज्ड होता है, मतलब वो हैक होता है, तो सारा चीज आपका जा सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो पासवर्ड लगाते हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सेम पासवर्ड कभी नहीं होना चाहिए। जितने भी ऐप यूज करते हैं आप हमेशा अलग अलग पासवर्ड लगाएं। अगर सपोज दैट किसी को अगर आपका पासवर्ड पता चलता है तो एक चीज हैक होगा, सारी चीज हैक नहीं होगी। अगर आप गूगल पे, फोन पे, 2 ऐप अगर अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं, तो उस कड़ी में अगर दोनों में अगर सेम पासवर्ड है, इसका मतलब आपका दोनों चीज एक बार में हैक होगा, है ना। या भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी प्रकार के जो आप पासवर्ड लगाते हैं उसमें सेम कभी ना रखें। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है, यूज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अपर केस, लोअर केस लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर ईच अकाउंट्स। अब जब भी आप पासवर्ड सेट करें तो माइंड में हमेशा सेट करें कि हर तरह के कैटेगरीज को इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने और यूनिक बने। यूनिक का मतलब कि आपके जैसा पासवर्ड किसी दूसरे का मैच ना करे, है ना। यानी आपका पासवर्ड सिर्फ आपका ही रहे, वैसा किसी दूसरा और व्यक्ति के पास ना हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसा अभी कि नेक्स्ट बताया कि आपके पासवर्ड, यानी कि अगर पासवर्ड बेसिकली एक वर्ड का होता है, तो एक वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स होंगे हम सारे लेटर्स को चेंज करते हैं। जैसे कुछ हम नंबर्स को डाल देंगे, कुछ अपर केस को डाल देंगे। अपर केस का मतलब जो भी हम अंग्रेजी का जो वर्ड लिखते हैं, या तो वो एक कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, यानी अपर केस, लोअर केस, है ना। तो उसमें हम अल्टरनेटिव केस का यूज करेंगे। अल्टरनेटिव केस का मतलब कि जहां हम कभी अपर केस का भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का लेटर यूज करें। इसके साथ ही कंप्यूटर के कीबोर्ड में या फिर मोबाइल के कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। स्टार हो गया, हैच हो गया, ये सब जितने टैग्स है, इन सारे टैग्स का यूज करें, है ना। स्टार है, हैच है, स्लैश है, डैश है, हाइफन है ना, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है। तो इस तरह के वेरियस जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल है। हम इन सारे कीबोर्ड्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इन सारे का कॉम्बिनेशन मिला के एक वर्ड बनाते हैं, उसके बाद जो पासवर्ड बनेगा, तो कोई भी आदमी जो हमसे बात करता है, जो हमारे टच में रहता है, जो हमारे कांटेक्ट में रहता है, वो हमारे पासवर्ड तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि ज्यादातर जो हम हैक होते हैं, जब हम जहां तक जानते हैं कि कभी भी किसी का मोबाइल हो या कंप्यूटर या डाटा क्रैश करती है या हैक होता है, वो हमेशा करने वाला वो आपके घर के फैमिली मेंबर या आपसे जुड़े हुए व्यक्ति ही होते हैं। किसी थर्ड पर्सन में कोई मतलब नहीं कि आपका डाटा क्या है, नहीं है। क्योंकि हम लोग बड़े लेवल पर काम नहीं करते, हम लोग कोई बड़े बैंक का मैनेजर वगैरह इस तरह का चीज नहीं है। तो हम लोग एक जो हम लोग का जो सिंपल वर्क घर में जो रहते हैं, डोमेस्टिक वर्क होता है, इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये सब करने वाले व्यक्ति हमारे आसपास के ही होते हैं, जो हमारी मेंटालिटी को जानते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इन सारी चीजों को जानते हैं। तो हमेशा अपने पासवर्ड को इस तरह से मेंटेन रखें। नेक्स्ट है, यूज सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का ईमेल अगर कहीं पे भेजना हो, तो आप 2 तरह के ईमेल हमेशा बना के रखें। नेक्स्ट, अगर आपका जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित जितने भी चीजें होते हैं, सपोज दैट कि अगर आप किसी बैंकिंग का, मतलब किसी भी जॉब्स के फॉर्म भरते हैं, या घर का जितने भी जो भी जैसे गैस हो गया या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गए, इस तरह का जितनी भी चीजें, उसमें जो ईमेल यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जो ऑफिशियल ईमेल्स है उसको कभी भी मैच ना होने दें। यानी 2 ईमेल हमेशा बना कर रखें, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। अगर किसी के पास हमारा ईमेल हैक भी होता है तो एक डाटा जाएगा। अगर हमारा घर का ईमेल हैक होता है तो सिर्फ घर का इंफॉर्मेशन गया, वो ऑफिशियली सारा इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमारे पास कभी नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि जब भी ईमेल यूज करें तो अलग अलग सेक्टर, हम तो सजेस्ट करेंगे कि अलग अलग सेक्टर पर अलग अलग ईमेल्स बना कर रखें, है ना। ताकि अगर कोई हैक भी करता है तो एक चीज हैक होगी, सारा चीज हैक नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग एक ईमेल बनाते हैं और उसी को अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि अवॉइड यूजिंग फ्री अनसिक्योर्ड वाईफाई फॉर शॉपिंग और बैंकिंग ऑन द इंटरनेट एंड ऑल्सो
and also for logging into your social media profile. अब क्या है कि किसी भी प्रकार से आपको अगर फ्री में कोई वाईफाई कहीं से मिल रहा है, जिस सोर्स को आप जानते नहीं है, वो अननोन सोर्स है, आप कहीं रैंडम सा लोकेशन पर, मान लेते हैं अगर आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं या ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आसपास के कोई व्यक्ति आप किसी को जानते नहीं है और वो अपना इंटरनेट पे अपने फोन में वो वाईफाई ऑन एक्टिवेट कर दिए हैं, वो अपने वाईफाई को फ्री कर दिए हैं और हमने ऑन किया और हमें देखा ओ माय गॉड ये फ्री में वाईफाई मिल रहा है। बट याद रखिए कभी कभी वाईफाई फ्री तो होता है, बट वो फ्री का कभी कभी हमें बहुत बड़ा उसका मुआवजा भी देना पड़ जाता है। होता है क्या है कि वो वाईफाई के साथ एक परमिशन भी होता है वो आपके डाटा एक्सेस करने का। तो अगर हम उस वाईफाई को यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा डाटा एक्सेस हो सकता है और वो आपका डाटा चोरी कर सकता है। कभी कभी हम देखते हैं, डाटा चोरी से याद आया, कभी कभी हमारे फोन में हमारे पास एक फोन आता है कि हेलो आपको लॉटरी लगा है, आपको एक टीवी मिलेगा, आपको पता नहीं कोई 10 लाख मिलेगा, उसके लिए आप पहले 3,000 रुपया दीजिए, 4,000 रुपया दीजिए, उसका प्रीमियम अमाउंट, मतलब कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुछ इस तरह का अमाउंट लेता है। कभी हम सोचते हैं कि उस पर्सन के पास नंबर कैसे गया मेरा, कभी हम नहीं सोचते हैं, सीधा हम लोग उस प्रलोभन में आ जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर भी नहीं करना होता है, सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि वो उसके पास नंबर गया कैसे। यही सब माध्यम जो हम गलती कर बैठते हैं और यही सब गलती की वजह से उस पर्सन के पास हमारा नंबर जाता है। वरना कोई भी व्यक्ति किसी को भी बिना मतलब का फ्री में कोई भी बेनिफिट नहीं देता है, हर एक चीज का एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर एक चीज का एक मेहनत होता है। बिना मेहनत फ्री में किए हुए कभी किसी को लॉटरी तक नहीं देता, फंसा हुआ लॉटरी भी नहीं देता है। और आप इतना आसानी नहीं है कि कोई आपको फोन करेगा 1 लाख 2 लाख या एक मारुति फंसेगा या फिर कोई बाइक फंसेगा, ये ऐसा कभी भी कोई लॉटरी नहीं होता। ये सिर्फ आपका डाटा क्रैश करेगा, आपका फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपको अपने कंट्रोल में रहेगा या आपसे कुछ पैसे की डिमांड करेगा। तो इन सभी चीजों से दूर रहें और उसको उसी समय या तो उस पर एक्शन ले या उसको वहीं से उसको डिलीट कर दे। उसको एंटरटेन भी ना करें, क्योंकि जितना देर एंटरटेन करेंगे उतना देर उसको मौका मिलेगा हमारे सर्वर पर रहने का। Next, delete old account that you do not यूज एनी मोड। अगर आप किसी अकाउंट्स को यूज नहीं करते हैं, अगर सपोज कि अगर आप कोई ईमेल बनाते हैं, 2-3 ईमेल बना लिए और नेक्स्ट सेशन में अगर आप कोई ईमेल को यूज कर रहे हैं और आपको पता चले कि वो ईमेल इसमें वर्क नहीं कर रहा, आपने नया ईमेल बना लिया और इससे पिछले का जो ईमेल है वो अगर वर्क में नहीं है आपके, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि उस ईमेल को इमीडिएटली आप उसे डिलीट कर दे, उससे पहले कि जब उसका आप पासवर्ड भूल जाए। आप उसके पासवर्ड भूलने से पहले उस ईमेल को जरूर उसको आप अकाउंट ही डिलीट कर दे। ऐसा नहीं कि अपने फोन से हटा दे, उसका अकाउंट को डिलीट कर दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने उस ईमेल को यूज करना बंद कर दिए और पता चला किसी और के द्वारा वो ईमेल यूज किए, अभी भी वो ईमेल यूज हो रहा होता है और कहीं ना कहीं वो आपके डाटा को क्रैश कर सकती है। तो इस तरह के जो अकाउंट आप यूज नहीं करते हो उस तरह के अकाउंट्स को आप इमीडिएटली डिलीट ही कर दें, है ना। या अगर कोई ईमेल अगर जो भी ईमेल बनाते हैं या पासवर्ड, उसे किसी सर्वर पर लिखने के बजाय उसके पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसके अपने कॉपी में अपने सेफ जगह जहां सिर्फ आप पहुंच सकते हैं उस जगह पर अपने जो भी पासवर्ड है उसको लिख के रखिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पासवर्ड बनाया अपने व्हाट्सएप पर या कहीं भी उस चीज को लिख के रखे हैं, तो क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल हैक होगा तो सारा पासवर्ड भी साथ में हैक हो जाएगा। यानी जो देखने वाले पर्सन होंगे आपके मोबाइल के साथ साथ वो सारी चीजों को देख सकता है जहां जहां आप जो चीज लिखे हैं। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद एक्सेस योर बैंक्स वेबसाइट बाय मैनुअली टाइपिंग इट्स यूआरएल इन द एड्रेस बार एंड नेवर एक्सेस इट फ्रॉम एन ईमेल और टेक्स्ट मैसेज। अब कभी भी किसी के द्वारा अगर कोई लिंक मिलता है, अगर उस पर्सन को नहीं जान रहे हैं तो उस लिंक को कभी भी एक्टिवेट ना करें। अगर आपको किसी भी पोर्टल को यूज करना है तो आप उसको एक्सेस करने के लिए आप यूआरएल पर जाए और यूआरएल पर खुद से टाइप करें उस पोर्टल को और उसको टाइप करके तब आप उसको यूज करें, तब आप उसे एक्सेस करें। ऐसा नहीं कि किसी भी अननोन सोर्स से आपको कुछ हाँ एक वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर आपका ये जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप सेम लिंक पर रिकनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार से अगर सोर्स के माध्यम से कोई लिंक आता है तो आप इमीडिएटली उसको एंटरटेन ना करें। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने यूआरएल पोर्टल पर जाए और वहां से चेक करें और उसको जरूर चेक करें कि वो एस है या नहीं, यानी कि HTTP और लास्ट में वो एस होना चाहिए। इसका मतलब आपका वो चीज सेफ और सिक्योर्ड है। उसके बाद ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, एक लास्ट में 8वां नंबर छूट गया था। तो कभी भी किसी भी प्रकार से अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि वो एक वैलिड सोर्स से मिला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन रैंडम से मिलते हैं। हम अपना भी एक एप्लीकेशन बना के और उसको किसी तरह का डाटा एक्सेस करके हम अपना एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं जो कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। तो लोग रैंडमली सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और
हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जब भी इंस्टॉल करते हैं तो कुछ परमिशन मांगता है, अलाउ डिनाई का। हम लोग सबको अलाउ करते हैं, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ समझे अलाउ 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 कर देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर हम बताना चाहेंगे। सपोज दैट कि हमारे मोबाइल में एक कैमरा है और उस कैमरा के अलावा हम एक अलग से कैमरा डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है ब्यूटी। एक ब्यूटी कैमरा होता है, या B6+ करके या फिर B12 करके कोई कैमरा आता है। और सपोज दैट कि वो कैमरा का काम है फोटो खींचना। जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं वो हमसे मीडिया परमिशन मांगता है। चलिए हम उसको अलाउ करते हैं, मीडिया परमिशन अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर हम फोटो खींचेंगे तो वो एक फोटो बनेगा, फोटो एक प्रकार का मीडिया है। तो चलिए हम उसको इंस्टॉल करने के बाद मीडिया परमिशन को अलाउ करते हैं। बट उस केस में अगर वो हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगता है, कॉन्टैक्ट एक्सेसिबिलिटी मांगता है, हम उसे कैसे अलाउ करें? एक फोटो कैमरा एप्लीकेशन का कौन सा काम पड़ गया जो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को जानेगा? कोई काम नहीं है उसका। तो हम उस तरह की चीजों को अलाउ ना करें, इसको वहीं पर डिनाई करें। तो कभी भी किसी भी प्रकार से एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं तो इन सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो चीज अलाउ कर रहे हैं वो अलाउ करने वक्त कि आप वो अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जब भी आप कोई चीज अलाउ करते हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है, उसके जो सर्वर होते हैं, उसके जो ऑथराइज पर्सन होते हैं उस एप्लीकेशन के, वो आपकी चीजों को देख रहा होता है। सपोज कि अगर हम एक कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और मीडिया एक्सेस को ऑन कर देते हैं, मीडिया एक्सेस कर दिए, वहां पर अलाउ कर दिए, तो कहीं ना कहीं वो जो सर्वर बना है, वो जो सर्वर है जो उस एप्लीकेशन का, वो सर्वर के पास हमारा मीडिया जो भी हम फोटो होगा वो शायद हो सकता है तो